Assalamualaikum everyone. Hopefully you all are doing well. As we were discussing the biology of FSC part 2 and the chapter we were discussing was chapter number 30 thermoregulation and osmoregulation. And now we are moving towards the lecture number 3. If you have any queries from lecture number 1 or 2, you can tell me in the comment section of those videos. So today's lecture is about the osmoregulators and osmoconformers, right? So as we already know the term of osmoregulation, so we are going to relate that to the osmoregulators and osmoconformers. So first of all, the first term in this topic is osmoregulation. We already know that osmoregulation is the maintenance of water and solute balance in the body fluids. So this maintenance is called the osmoregulation and it ensures that body fluid do not become too dilute or too concentrated. Like we have to maintain the balance in this process. It is essential for maintaining a stable internal environment. As we already discussed in the previous lecture that it is essential for all the body functions that our body's internal conditions should be stable. So keeping the water and solute balance is called the osmoregulation. So what is the importance of osmoregulation? Osmoregulation is important for many physiological processes like maintaining proper blood pressure, ensuring the proper functioning of organs of the human body or of the other organism's body, and regulating the metabolism, maintaining water and salt balance. So maintaining all these balances is called the osmoregulation, and that is the importance of osmoregulation. And this proper balance of water and solutes is necessary for normal body function. So before moving further, first of all, recall some of the terms that we've already discussed in the previous grades, but their terms are we are going to use that terms in today's lecture. So first of all, we have to recall what is osmosis and what is the osmotic pressure. ये टर्म्स आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो है आपने लॉन्ग क्वेश्चन में भी ऐड करें तो बेहतर है. इसके अलावा आपको लार्जली इसका कंसेप्ट होना चाहिए कि what is osmosis. Osmosis is actually the diffusion of water across a selective Osmosis is the diffusion of water across a selectively permeable membrane, and water moves from a more dilute to a less dilute solution. You can say water moves from a dilute to a concentrated solution, and you also have to recall the term like more dilute means hypotonic solution and concentrated means hypertonic solution. Okay, we are going to use these terms in our next lecture, so you have to clarify these here. नेक्स्ट टॉपिक में जो है ये बार बार यूज होंगी, तो अगर आपको ये क्लियर नहीं होंगी तो आप नेक्स्ट टॉपिक में मूव नहीं कर सकते. सो मोर dilute means hypertonic and more concentrated means hypertonic. So osmotic pressure is the measure of solution tendency to take in water by osmosis. So the classification of animals is our actual topic. के osmoregulation की basis पे हम जो है एनिमल्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज osmoconformers and second one is osmoregulators. So first of all, we are going to discuss about osmoconformers. These are the animals that allow the osmotic concentration of their body fluid to match their surrounding environment. मतलब इनके बॉडी फ्लूइड्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट के मुताबिक ही रहती है, उसे मैच कर देती है. मतलब ये अपनी बॉडी कंडीशन जो है उसको मेंटेन नहीं कर सकते, कांस्टेंट नहीं रख सकते. जैसे ही इन्वायरमेंट में चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली इनकी बॉडी के जो फ्लूइड्स होंगे उसकी कंसंट्रेशन में भी चेंज आ जाएगा. मतलब इनकी जो बॉडी होती है उसके फ्लूइड्स जो है आइसोटोनिक होते हैं टू द एनवायरनमेंट. मतलब इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी सेम कंसंट्रेशन होती है. तो
इनकी हैबिटेट जो होती है दैट इज़ रिलेटिवली स्टेबल सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है इनकी हैबिटेट में, इसीलिए ये सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि इनके एनवायरनमेंट में ही स्टेबल सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है। जैसे कि मेरीन वाटर में देख सकते हैं, वहाँ ऑलरेडी सॉल्यूट्स की अमाउंट काफ़ी एक्सेस में प्रेजेंट होती है उनके एनवायरनमेंट में, तो इसी वजह से उनके बॉडी में भी जो है स्टेबल कंसंट्रेशन रहती है। इसका जो कंप्लीट प्रोसेस होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपको ऑस्मो कन्फॉर्मर्स पे और ऑस्मो रेगुलेटर पर लॉन्ग आ जाता है तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो इनफ है। वो जो नेक्स्ट है, हम मेरीन और फ्रेश वाटर का जो सारा मैकेनिज्म है ऑर्गेनिज्म का वो डिस्कस नहीं करेंगे उस लॉन्ग क्वेश्चन में। तो ये प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन आप इसी तरह से हेडिंग्स में जो है इसको राइट करेंगे। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास मेरीन इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, मेरीन वर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि हैग फिशेज आ जाती हैं, शार्क्स, वेल्स आ जाती हैं। इसके अलावा कुछ जो है फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स भी इस एग्जांपल में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है दैट इज ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स वो एनिमल्स हैं जो रेगुलेट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को और सॉल्यूट्स को बॉडी फ्लूइड के अंदर। मतलब इनकी जो बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन होगी वाटर और सॉल्यूट की वो इनकी सराउंडिंग पर डिपेंड नहीं करेगी, ये इसको रेगुलेट कर सकते हैं एंड दे मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन। तो ये इनकी बॉडी कंडीशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो एनवायरनमेंट डिपेंड नहीं कर रही होती, इनकी इंटरनल कंडीशन जो है स्टेबल रहती है डिस्पाइट द चेंजेस इन द environmental condition or external environment. तो ओस्मो रेगुलेटर्स जो है इन शॉर्ट वी कैन से दे मेंटेन देयर होमियोस्टेसिस. So the mechanism of osmoregulation in osmoregulator is they maintain their internal balance through different mechanisms like active transport of salts. They transport the salt from their environment into their body, or accumulation of salt in their body, and water conservation in their body. They have to save the water. So these mechanisms help them to maintain their internal body condition at the constant balance. So if we look at the examples of osmoregulators, they are most aquatic vertebrates and most terrestrial vertebrates. क्योंकि आपको पता है एक्वेटिक कंडीशन जो है हमारे पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, तो उसमें अगर बॉडी में कोई मैकेनिज्म नहीं होगा तो सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें एग्जांपल्स ह्यूमंस की आ जाती हैं, बर्ड्स की आ जाती है, रेप्टाइल्स की आ जाती है, एम्फीबियंस और मोस्ट बोनी फिशेस जो हैं वो सारे हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स के अंदर आ जाते हैं। मतलब जितने भी एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, क्योंकि वो अपने बॉडी का जो सॉल्यूट और वाटर कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो हमारे पास लास्ट पे हम इसको एज अ डिफरेंस भी देख सकते हैं कि अगर आपको एज अ डिफरेंस आ जाता है तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस में तो आप डेफिनेशन कोट करेंगे। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स जो है ये अलाउ करेंगे कंसंट्रेशन को कि वो मैच करें एनवायरनमेंट के साथ, जबकि जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होंगे वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट दे विल रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इन देयर बॉडी फ्लूइड्स। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस आ जाता है इंटरनल कंसंट्रेशन का। इनकी जो इंटरनल कंसंट्रेशन होती है वो चेंज होती है सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की, लेकिन ऑस्मो रेगुलेटर्स की जो कंडीशन होती है, इंटरनल कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट रहती है चाहे एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस आते हैं। और इसके बाद लास्ट हमारे पास आ जाता है एबिलिटी टू ऑस्मो रेगुलेट। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की हमने देखा कि उनकी जो बॉडी की कंडीशन है वाटर और सॉल्यूट को बैलेंस करने की वो चेंज होगी एनवायरनमेंट के साथ, मतलब वो रेगुलेट नहीं कर सकते वाटर और सॉल्यूट कंसंट्रेशन को, जबकि जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं वो रेगुलेट कर लेंगे। और इन्वायरमेंट की बात करें तो यूजुअली ऑस्मो कन्फॉर्मर्स जो हैं वहाँ पे सर्वाइव करते हैं और वहाँ पे मोस्टली इनकी हैबिटेट होती है। हैबिटेट इनकी वो होती है जहाँ पे स्टेबल सॉल्यूट कंसंट्रेशन हो हमारे पास, जबकि ऑस्मो रेगुलेटर्स जो हैं ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर लेते हैं। लास्टली हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती है मेरीन इनवर्टिब्रेट्स की, हैग फिशेस, शार्क्स एंड वेल्स की। और ऑस्मो रेगुलेटर्स में हमने डिस्कस किया था कि इसमें एग्जांपल्स आ जाती है मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की। इधर आप एग्जांपल में स्पेसिफिकली नेम्स भी लिख सकते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स में, लाइक ह्यूमंस, रेप्टाइल्स। इसका डिफरेंस जब आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें समझ नहीं आती, क्योंकि डेफिनेशन में अगर आप देखें तो इंटरनल कंडीशन कंसंट्रेशन का पॉइंट भी कवर हो रहा है, एबिलिटी टू ऑस्मो रेगुलेट का पॉइंट भी कवर हो रहा है, इन्वायरमेंट का भी समहाउ
कवर हो रहा है। इस तरह से उन्हें समझ नहीं आती कि हम एज अ लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से इसको अटेम्प्ट करें। तो इस तरह से अगर आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे, अपनी हेडिंग्स यहाँ पे नोट कर लेंगे, तो फिर आप इजीली पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी इसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो अपने मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। इस तरह की बहुत सारी टर्म्स होती हैं आपके बुक में जो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन और डिफरेंस के फॉर्म में आपसे पूछी जाती हैं। तो यू शुड हैव टू प्रिपेयर देम एज अ कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन एंड टू राइट द डिफरेंस। और डिफरेंस में हमेशा आप सेंटर में लाइन जो है उसको सेंटर में लाइन ड्रॉ करते हैं और उसकी दोनों साइड पर जो है वो डिफरेंस जो है उसको मेंशन करते हैं। If you have any query from this lecture, you can ask me in the comment section। और coming lectures में अगर आपको लगे कि कोई lecture इस तरह से होना चाहिए कि आप उसकी by hand presentation देख सकें, तो उस तरह से भी conduct किया जा सकता है। It depends upon your comments। तो आप उसके according मुझे comment कर सकते हैं। Thank you so much।